हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 15 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ, PCS, PPSC, SSC ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ IBPS RRB ਲਈ, JEE ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਚਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕੇਜ਼ਾਂਗ ਦੀ ਥੋਂਗਡੌਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ 2020। ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੇਜ਼ਾਂਗ ਦੀ ਥੋਂਗਡੌਕ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਚੀ ਲੂਪੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਨੀ ਹੰਟਰਸ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੈਂਜ਼ਿਨ ਗਾਇਚੀ ਥੇਡੋਂਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਹਿਜ਼ ਹੋਲੀਨੈਸ ਦ 14th ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ। 14ਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ। ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ 14ਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੈਂਜ਼ਿਨ ਗਾਇਚੇ ਥੇਡੋਂਗ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ 14ਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੈਂਜ਼ਿਨ ਗਯਾਤਸੋ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। IIT हैदराबाद ने पार्टनरशिप की किस दे ਲਈ? इसने पार्टनरशिप की नवीडिया ਦੇ ਨਾਲ पार्टनरशिप की टू एस्टैब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट नवीडिया AI टैक्नोलॉजी सेंटर। इंडिया का पहला AI टैक्नोलॉजी सेंटर नवीडिया AI टैक्नोलॉजी सेंटर ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ IIT हैदराबाद ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੀ ਹਸੀਨ ਲੌਂਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਲੀ ਸੀਨ ਲੌਂਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ ਅਰਥ ਸਾਇੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੋਕਸਡ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਫॉर ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ COVID-19। ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ COVID-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੂਸਰਾ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡੀਕ੍ਰੈਂਟਸ ਸਟੇਟਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੀਡੀਨੈਸ ਐਂਡ ਚੈਲੰਜਿਸ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਦੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਚੈਲੰਜਿਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਬਿਕਮਸ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ UK ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ USA ਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਔਰ ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? USA ਦੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਥਰਡ ਜਰਮਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ NTPC ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ CII ITC ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਅਵਾਰਡ 2019 ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। CII ITC ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਅਵਾਰਡ 2019 ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ NTPC ਨੂੰ। NTPC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ NTPC ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। NTPC ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ, याद रखना। नेक्स्ट है
A rare golden tiger is spotted at Kaziranga National Park of Assam, which is famous for one-horned rhino. ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈ? ਵਨ ਹੌਰਨ ਰਾਈਨੋ ਦੇ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਗਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਗਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਮ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 5 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ATL ਐਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇੱਕ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ? HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਝਾਰਖੰਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਫॉर ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬਾਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਲੇਟਰਸ ਟੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਏ HDFC ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਸ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ? HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸੇ ਵਿਕਾਸ ਹਰਿਆਣਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਫॉर ਲੌਂਗ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਊਜ਼ ਔਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਸ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਸ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਸ ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਜ਼ ਨੇ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਧਾਨ ਸੇ ਵਿਕਾਸ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕੰਡਕਟਡ ਇਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੋਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਰੋਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? EK ਪਲਾਨਾਸਵਾਮੀ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ EK ਪਲਾਨਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਪੌਲ ਹੈਰਿਸ ਫੈਲੋ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਥੇ ਪੌਲ ਹੈਰਿਸ ਫੈਲੋ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੌਲ ਹੈਰਿਸ ਫੈਲੋ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ EK ਪਲਾਨਾਸਵਾਮੀ। ਯਪਥੀਮਾ ਵਾਟਸੋਨੀ ਇੱਕ ਰੇਅਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ 61 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਯਪਥੀਮਾ ਵਾਟਸੋਨੀ ਰੇਅਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ 61 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਯਪਥੀਮਾ ਵਾਟਸੋਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੇਅਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੈ। India's tiger census of 2018 sets a Guinness World Record for being the world's largest camera trap wildlife survey। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਸੈਂਸਿਸ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੈਮਰਾ ਟਰੈਪ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸਰਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੈਂਸਿਸ? 2018 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਸੈਂਸਿਸ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਗਰਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ ਸੀ? 2967 ਟਾਈਗਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਂਪਲਸ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਂਪਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾफ़ी ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਗਵਰਨਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਂਪਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ। ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਗਨਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਦੀ, ਜਗਨਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਗਨਨਾਥ ਟੈਂਪਲ। ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਜੂਰਾਹੋ ਟੈਂਪਲਸ ਕਿਤੇ ਨੇ? ਖਾਜੂਰਾਹੋ MP ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਖਾਜੂਰਾਓ ਟੈਂਪਲਸ? MP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਬਾਲੀਪੁਰਮ ਟੈਂਪਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਬਾਲੀਪੁਰਮ ਟੈਂਪਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ठीक है जी, स्टैटिक के बेस के लिए अपने लिए अज आप इन्ना ही डिस्कस करांगे। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑन विच डे वर्ल्ड मलाला डे ऑबजर्व किया गया यूनाइटेड नेशनस द्वारा? यूनाइटेड नेशनस द्वारा वर्ल्ड मलाला डे ऑबजर्व किया गया। कदों ऑबजर्व किया गया? इसनूं ऑबजर्व किया गया 12 जुलाई नूं। 12 जुलाई नूं वर्ल्ड मलाला डे ऑबजर्व किया गया। वर्ल्ड मलाला डे कदों ऑबजर्व किया गया? 12 जुलाई नूं। इस तो इलावा अगर आप गल करिए मलाला कौन, मतलब इस दिन क्यों ऑबजर्व किया जाता? मलाला यूसुफजाई इन्हां दी बर्थ एनिवर्सरी नूं ऑबजर्व करने के लिए यूनाइटेड नेशनस द्वारा ऑबजर्व किया गया। ये कौन सी? ये बेसिकली एक 17 साल की लड़की सी, पाकिस्तान बेस्ड, जिसके उत्ते हमला किया गया सी तालिबान द्वारा, सिर्फ इस दे लई क्योंकि ये स्टडी करना चाहते थे। ठीक है, इस करके इन्हों उस तो बाद ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के रहे। इन्हों 2014 नोबल पीस प्राइज़ भी दिता गया। 2014 नोबल पीस प्राइज़। इन्हों द्वारा एक बुक लिखी गई, वी आर डिसप्लेस्ड, मलाला यूसुफजाई द्वारा लिखी गई। 17 साल की उम्र के इन्हों की दिता गया सी? नोबल प्राइज़ दिता गया सी 2014 के। ये याद रखना। और ये यंगेस्ट रेसिपिटेंट बने सी नोबल प्राइज़ के। अच्छा, इन्हों की एक बुक आप डिस्कस कर ली, वी आर डिसप्लेस्ड। दूसरी बुक का नाम तुसी कमेंट बॉक्स में दसना। दूसरी बुक इन्हों की केड़ी है? इन्हों द्वारा एक होर बुक लिखी गई सी, उसका नाम दसना। 1 जुलाई नूं किहड़ा दिन ऑबजर्व किया गया सी? 1 जुलाई नूं नैशनल CA डे, डॉक्टर्स डे। इस तो इलावा नैशनल CA डे, डॉक्टर्स डे और पोस्टल वर्कर्स डे। 10 जुलाई नूं हुणे आपां डिस्कस किया सीगा कुछ दिन पहले, नैशनल फिश फार्मर्स डे। 2 जुलाई वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 11 जुलाई नूं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। गलती नाल बाय मिस्टेक मैंने नैशनल पॉपुलेशन डे दसता सी, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सीगा 11 जुलाई नूं। बेसिकली जिसदी थीम रही सी वूमेन एंड गर्ल्स दे राइट दे उत्ते, समथिंग सीगी हैल्थ एंड राइट्स ऑफ वूमेन्स एंड गर्ल्स, इस तरीके की थीम रही सी। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट है अ बुक टाइटल्ड एज अ सॉन्ग ऑफ इंडिया रिटन बाय। एक बुक लिखी गई अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। इस बुक नूं किस द्वारा लिखा गया? ये बुक न्यूज़ दे विच रही, किस द्वारा लिखा गया? इस बुक नूं लिखा गया रस्किन बॉन्ड द्वारा इस बुक नूं लिखा गया। अ बुक टाइटल्ड सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ इंडिया। इस तो इलावा अगर आप बाकी ऑप्शंस की गल करिए, उर्जित पटेल द्वारा केड़ी बुक लिखी गई? ओवरड्राफ्ट। आर सी भार्गव मारुति सुजुकी के चेयरमैन ने, और इन्हों द्वारा गेटिंग कंपीटिटिव इस बुक नूं लिखा गया सी RC भार्गव, गेटिंग कंपीटिटिव। AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार इन्होंने दोनों हस्बैंड वाइफ ने, इन्हों द्वारा मिलकर बुक लिखी गई महावीर द सोल्जर हू नेवर डाइड। ठीक है जी, इन्हों का नाम पहले डिस्कस कर चुके हैं तीनों बुक्स। चौथी बुक आप अज डिस्कस की है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, किस द्वारा? रस्किन बॉन्ड द्वारा। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन स्टायरेनियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 एट रेड बुल रिंग इन स्पिलबर्ग ऑस्ट्रिया। सब तो पहले एक न्यूज़ उत्थे पहले डिस्कस करते हैं कि ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, कुछ दिन पहले आप डिस्कस किया सी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, उसनूं जित्तिया सी वोल्टेरी बोटेस द्वारा ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स दिता गया सी। और यह कित्थों बिलोंग करते सी? फिनलैंड तो। किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते सी? फिनलैंड तो बिलोंग करते सी। ठीक है जी, ये आप डिस्कस किया सी। हुण स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स भी रेड बुल रिंग सेम प्लेस वेन्यू सेम रहा है, याद रखना है, रेड बुल रिंग स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया।
और इसनों जितया गया लुइस हैमिल्टन द्वारा। किस द्वारा जितया गया है? लुइस हैमिल्टन द्वारा। लुइस हैमिल्टन किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? यूके तो बिलोंग करते हैं। ये याद रखना है, लुइस हैमिल्टन कित्थों बिलोंग करते हैं? यूके तो बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज़, ऑस्ट्रिया की गल आई है तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल और करंसी, ऑस्ट्रिया की कैपिटल करंसी अगर आप डिस्कस करिए, ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना, ऑस्ट्रिया कैपिटल की है वियना। ठीक है, अच्छा वियना तो कुछ समिट याद आता है, समिट किहड़ा सी मेरा दिमाग स्किप कर रहा है माइंड चों कि वियना दे विच एक समिट हैल्ड किया गया सी, वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन याद रखना है, ऑस्ट्रिया वियना दे विच है। नेक्स्ट है, which of the following company has announced India's digitalization fund through which rupees 75,000 crore will be invested? इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਅਨਾउंस ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? 75,000 ਕਰੋੜ यानी कि ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 10 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਾਊਂਟ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ। गूगल द्वारा इंडिया दे विच इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड, इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड दे विच 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की गल की गई है। यानी कि इंडिया नू डिजिटाइज करने दे विच ये अपना योगदान पाएंगे 75,000 करोड़ के नाल। गूगल की गल करिए, सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई गूगल के हैड ने, और इसनू इस तरीके नाल नहीं है कि हुणे इकलौता दे दिता जाएगा 75,000 करोड़। इसनू 5 तो 7 साल का टाइम पीरियड दिता गया कि 5 तो 7 साल दे विच 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे गूगल द्वारा इंडिया दे विच। ठीक है जी, क्योंकि काफ़ी लार्ज अमाउंट है और इकट्ठा देना काफ़ी मुश्किल है। सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई गूगल के हैड ने, कैलीफोर्निया USA दे विच गूगल का हैडकुआटर है। गूगल का हैडकुआटर कित्थे है? कैलीफोर्निया USA। इस तो इलावा अगर आप गल करिए, इस तो इलावा की डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम अल्फाबेट, ये भी याद रखना है। गूगल की पेरेंट कंपनी केड़ी है? अल्फाबेट। एमाजोन की गल करिए, एमाजोन हैड ने जेफ बेजोस, जेफ बेजोस वर्ल्ड के रिचेस्ट परसन के नाम से जाने जाते हैं इस टाइम। ये जेफ, फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार वर्ल्ड के रिचेस्ट परसन जाने जाते हैं जेफ बेजोस। फेसबुक, फेसबुक ने रिसेंटली, अच्छा रिलायंस भी इतने ऐड किया अपने, फेसबुक ने रिलायंस के 9.99% कह सकते हैं 10% स्टेक बाय किया रिलायंस के फेसबुक द्वारा। फेसबुक ने गीफी नाम की वैबसाइट को एक्वायर किया। मैपिलरी नाम की कंपनी, एक स्वीडिश कंपनी मैपिलरी, इसनू भी एक्वायर किया फेसबुक ने। इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप ये तीनों भी एक्वायर किए गए फेसबुक द्वारा। ये याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट के हैड ने सत्या नडेला, सत्या नडेला, ये याद रखना है। रिलायंस बारे भी याद रखना है कि रिलायंस के जोड़े हैड ने मुकेश अंबानी इस लिस्ट के 7th रिचेस्ट परसन बन चुके हैं, 7th रिचेस्ट परसन बन चुके हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच आफ्टर कोरोना वायरस आउटब्रेक एट एगस बॉल स्टेडियम ऑफ इंग्लैंड? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कोविड-19 कारण की होया सी, ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स इवेंट सीगे पोस्टपोन किए गए या फिर कैंसल कर दिते गए। ठीक है जी, तो उस तो बाद हुण कोविड तो बाद की होया, इंग्लैंड द्वारा, बेसिकली इंग्लैंड द्वारा होस्ट किया गया इंग्लैंड के एगस बॉल स्टेडियम के। स्टेडियम का नाम इंपोर्टेंट बन सकता है कि एगस बॉल स्टेडियम किहड़ी कंट्री के विच है? इंग्लैंड के विच। और इत्थे किहड़ा, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट इंटरनेशनल मैच, क्रिकेट मैच कोविड तो बाद कित्थे हैल्ड किया गया? एगस बॉल स्टेडियम के विच। कोविड-19 तो बाद पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच किहड़ी कंट्री द्वारा जितया गया? वेस्ट इंडीज़ द्वारा। वेस्ट इंडीज़ द्वारा इस मैच नूं जितया गया। बेसिकली ये मैच हैल्ड किया गया सी वेस्ट इंडीज़ वर्सिस इंग्लैंड, जिसनूं जितया किसने है? वेस्ट इंडीज़ ने, इंग्लैंड नूं हरा के। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए, बांग्लादेश और इंडिया का भी एक इंपोर्टेंट मैच है, काफ़ी बार आप डिस्कस कर चुके हैं, जिसनूं हैल्ड किया गया सी ईडन गार्डन कोलकाता दे विच। ईडन गार्डन कोलकाता दे विच फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच हैल्ड किया गया सी ईडन गार्डन कोलकाता दे विच इंडिया और बांग्लादेश का, जिसनूं जितया सी इंडिया ने, जिसनूं जितया सी अपने इंडिया ने। ऑस्ट्रेलिया की गल करिए, ऑस्ट्रेलिया के नाल रिसेंटली इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया सी लॉजिस्टिक्स के लिए। लॉजिस्टिक्स के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया सी अलॉन्ग विद 9 एग्रीमेंट्स। ठीक है जी, इस तो इलावा अगर गल करिए कुछ न्यूज़ की, तो ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है कि
ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾਬਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਮਾਲਾਬਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ USA ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੂ ਨਿਊ ਅਸੋਲਟ ਰਾਈਫਲਸ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਸੋਲਟ ਰਾਈਫਲਸ ਅਰਾਦ ਔਰ ਕੈਮਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰੇਗੀ MP ਦੇ ਵਿੱਚ, MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਰਾਈਫਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਈਫਲਸ ਨੇ ਅਰਾਦ ਔਰ ਕੈਮਲ ਔਰ ਇਹ ਐਸੀ ਰਾਈਫਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 700 ਤੋਂ 1000 ਰਾਊਂਡਸ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 700 ਤੋਂ 1000 ਰਾਊਂਡਸ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਹ 2 ਰਾਈਫਲਸ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੈਪੀਟਲ ਜ਼ੈਰੂਸਲਮ ਹੈ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕੀਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੈਪੀਟਲ ਜ਼ੈਰੂਸਲਮ, ਕਰੰਸੀ ਸ਼ਕੀਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੁਲਗੇਰੀਆ ਔਰ ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਇਹ 2 ਐਸੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਯੂਰੋ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। बुल्गारिया कैपिटल सोफिया, बुल्गारिया कैपिटल की है सोफिया और क्रोशिया कैपिटल है ज़ैग्रेब, क्रोशिया कैपिटल ज़ैग्रेब। ठीक है। और अगर करंसी की गल करिए बुल्गारिया दे विच इस टाइम लेव चलती है और क्रोशिया दे विच कूनो, क्रोशिया दे विच करंसी चलती है कूना सॉरी। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा न्यूज़ अगर आप मालदीव्स के रिलेटेड डिस्कस करिए, मालदीव्स भी न्यूज़ दे विच सीगा रिसेंटली, इस दे लई इंडिया ने की करिया, इन्हां नूं इक्विपमेंट प्रोवाइड कीते ने। किहड़े इक्विपमेंट? आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट, आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट। कल दी आपां क्विक रिवीजन दे विच इसनूं अच्छे तरीके नाल डिस्कस कर लांगे। मालदीव्स नूं दे 61 आइलैंड्स नूं, मालदीव्स दे 61 आइलैंड्स नूं 8 मिलियन यूएस डॉलर्स दे, 8 मिलियन यूएस डॉलर्स कैश ग्रांट दी गई है। अगर इंडिया द्वारा इक्विपमेंट्स जोड़े प्रोवाइड किए गए हैं, कैश ग्रांट दी गई है उस 8 मिलियन यूएस डॉलर की। चाइना ने रिसेंटली सैटेलाइट कह सकते हैं लॉन्च की है, टैलीकम्यूनिकेशन सैटेलाइट। न्यूज़ के ऐप स्टार, चाइना ने लॉन्च की है ऐप स्टार, ऐप स्टार 6G, ऐप स्टार 6G नूं लॉन्च किया कि टैलीकम्यूनिकेशन सैटेलाइट चाइना द्वारा। किहड़े रॉकेट दे नाल? ज़्यादातर इन्हां दी सैटेलाइट्स इस टाइम एक ही रॉकेट यूज़ कर रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च 3B, लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट दे नाल, लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट दे नाल याद रख। नैक्सट है हू इज़ अपॉइंटेड एज प्रेजिडेंट ऑफ पोलैंड। पोलैंड के प्रेजिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? पोलैंड, सब तो पहले पोलैंड कैपिटल की है वॉर्सो, पोलैंड कैपिटल वॉर्सो। करंसी इत्थे ज़लोती चलती है, करंसी ज़लोती चलती है। और कौन अपॉइंट किए गए हैं? इत्थे दे प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं एंड्रेज डूडा। नाम इंपोर्टेंट बनेगा क्योंकि बहुत ही घट मार्जिन के नाल, अगर आप गल करिए बहुत ही घट मार्जिन के नाल इन्होंने इस इलैक्शन में जितया है। पोलैंड के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं एंड्रेज डूडा। इस तो इलावा लेज़रूस चकवेरा का नाम आप काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। मलावी के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं लेज़रूस चकवेरा। मलावी कैपिटल लिलोंगवे, करंसी कवाचा चलती है। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के अपॉइंट किए गए हैं गुडनी जोहानसन, प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। और इत्थे कैपिटल है रेक जैविक और करंसी करोना चलती है। माइकल मार्टिन आइसलैंड दे और माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेजिडेंट से और ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं माइकल मार्टिन, आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। आयरलैंड कैपिटल डबलिन है और करंसी यूरो चलती है। जीन कैस्टेक्स फ्रांस दे,
फ्रांस के नवे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर सीगे एडवर्ड फिलिप्स, इन्होंने रिजाइन किया सी और इन्हों तो बाद इमैनुअल मैकरॉन जिहड़े इत्थे दे प्रेजिडेंट ने उन्होंने दोबारा जीन कैस्टेक्स नूं नवां प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। जीन कैस्टेक्स नूं न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया किन्हां दोबारा इमैनुअल मैकरॉन दोबारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज़ डेवलप्ड UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुड टू मेक रूम कोविड फ्री। अगर आप IIT की गल करिए आप कोविड-19 तो शुरू करते हैं। कोविड-19 अगर आप गल करिए कोविड-19 का टाइम पीरियड मार्च तो अगर आप शुरू करिए तो मार्च तो डिफरेंट IITs द्वारा डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले गए, न्यूज़ के विच रही, काफ़ी ज़्यादा IITs न्यूज़ के विच रही ने। ये सारी न्यूज़ ने जिहड़ियां IITs से रिलेटेड अपने लिए किते ना किते इंपोर्टेंट बननगियां। आप कोशिश करांगे कि डिफरेंट सैशन ले आइए तुहाडे लई कि जिहड़ी IITs दोबारा डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले गए या कुछ लॉन्च किया गया मार्च तो लैके हुण तक उन्होंने उस दे विच ऐड किया जाए। ठीक है, तो हुण की किया कि शुद्ध नाम का UV सैनिटाइजिंग डिवाइस लॉन्च किया गया IIT द्वारा की करन दे लई अपने रूम नूं कोविड फ्री करन दे लई। जिवें अपना एक रूम है आप उस दे विच उस डिवाइस नूं इंस्टॉल कर सकते हैं जिस दे नाल उसनूं कोविड फ्री कर सकते हैं। शुद्ध नाम का डिवाइस किसने बनाया गया? IIT कानपुर द्वारा। IIT कानपुर द्वारा। अच्छा, रिसेंटली IIT कानपुर मोबाइल मास्टर जी दे लई भी इंपोर्टेंट बनया सीगा IIT कानपुर। इन्हां द्वारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया सी IIT कानपुर द्वारा। इस तो इलावा अगर आप गल करिए IIT दिल्ली की रिसेंटली कोपाल-19 दे लई कोपाल-19 एक प्लाज्मा डोनर्स नूं ट्रैक करने के लिए बनाया गया सी। कोपाल-19 प्लाज्मा डोनर्स नूं ट्रैक करने के लिए। IIT रुड़की द्वारा प्राण वायु वेंटीलेटर लॉन्च किए गए सी IIT रुड़की द्वारा। रिसेंटली यूनीसेवियर डिसइनफेक्शन बॉक्स भी डेवलप किया गया IIT रुड़की द्वारा। यूनीसेवियर डिसइनफेक्शन बॉक्स डेवलप किया गया IIT रुड़की द्वारा। IIT गांधीनगर द्वारा प्रोजेक्ट आईसैक लॉन्च किया गया सी। प्रोजेक्ट आईसैक IIT गांधीनगर द्वारा लॉन्च किया गया सी। IIT बॉम्बे द्वारा डिजिटल स्टैथोस्कोप बनाया गया सी जिसका नाम रखा गया सी आईस सिंक। IIT बॉम्बे द्वारा डिजिटल स्टैथोस्कोप बनाया गया सी। ठीक है जी, ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। इस तो इलावा भी होर कई फैक्ट्स ने। IIT मंडी की गल कर दें या IIT हैदराबाद गल कर लें, ये सारी चीज़ां न्यूज़ के विच रह रही ने। इन्होंने बारे कोशिश करांगे कि अलग सैशन लेके आया जाए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन अवॉर्डेड विद एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 एट नेशनल लेवल बाय IT इंस्टीट्यूशंस। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि केड़ी स्टेट दे मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल एक पोर्टल लॉन्च किया गया इन्होंने द्वारा मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और इस दे नाल एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी गई। किस चीज़ के लिए इसनूं किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया कि जेडे डिफरेंट स्कीम्स ने उस स्टेट्स दी जिन्नियां भी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च कीतियां ने वो सारियां नूं एक सिंगल प्लेटफॉर्म के उत्ते प्रोवाइड करवा दिता। एक सिंगल प्लेटफॉर्म के उत्ते प्रोवाइड करवाया मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और इस इनिशिएटिव नूं अवार्ड दिता गया IT इंस्टीट्यूशनस द्वारा एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020। एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 उसनूं दिता गया। तो किहड़ी स्टेट नूं? छत्तीसगढ़ नूं इस दे नाल सन्मानित किया गया। किस दे नाल सन्मानित किया गया? इसनूं छत्तीसगढ़ द्वारा। ठीक है जी। अच्छा, छत्तीसगढ़ बारे अगर आप डिस्कस करिए किहड़ी स्कीम्स ने रिसेंटली लॉन्च की गई सी? गोधन न्याय योजना। इस तो इलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना इसनूं भी लॉन्च किया गया सी। आप डिस्कस किया सी, तुहानूं याद होएगा राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन इसनूं छत्तीसगढ़ द्वारा लॉन्च किया गया सी। गोधन न्याय योजना भी लॉन्च की गई सी छत्तीसगढ़ द्वारा। ठीक है जी। इस तो इलावा छत्तीसगढ़ रिसेंटली न्यूज़ के रहा सी। छत्तीसगढ़ रिसेंटली अगर आप कल की गल करिए न्यूज़ के रहा सी। किस चीज़ के लिए किहड़ी न्यूज़ आप डिस्कस की सी छत्तीसगढ़ के रिलेटेड? लोक अदालत पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने लॉन्च की सी छत्तीसगढ़ ने। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा होर की चीज़ां आप डिस्कस कर सकते हैं बाकी स्टेट्स के रिलेटेड। असम के रिलेटेड आप डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार। खेलो इंडिया गेम्स का 3rd एडिशन हैल्ड किया गया सी जिस दे विच टॉप किया सी महाराष्ट्र द्वारा 256 मैडल्स दे नाल। तमिलनाडु रिसेंटली तमिलनाडु अगर आप गल करिए तमिलनाडु के जी आकाश इंडिया के 66th चैस ग्रैंड मास्टर बने सी।
जी आकाश 66 ग्रैंड मास्टर बने सी चैस ग्रैंड मास्टर और कित्थों बिलोंग करते हैं तमिलनाडु तो। ओडिशा ने रिसेंटली बंदे उत्कला जनानी इसनूं स्टेट एंथम रिकोगनाइज़ किया सी। गुजरात ने इंटरनेशनल काइट फैसटिवल ऑर्गेनाइज़ किया सीगा गुजरात अहमदाबाद दे विच। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद 2020 वॉन करमन अवार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपने लिए। वॉन करमन बेसिकली एक साइंटिस्ट सीगे, उन्हों के नाम के उत्ते इसनूं स्टार्ट किया गया सी अवार्ड 2020 वॉन करमन अवार्ड। किस द्वारा दिता गया है? इंटरनेशनल अकैडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। किसनूं दिता गया? के सिवान। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के चीफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस दे चीफ ने के सिवान। इन्हों इंटरनेशनल अकैडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स द्वारा इस अवार्ड नूं दिता गया। इस अवार्ड नूं अनाउंस किया गया, बेसिकली दिता जाएगा मार्च 2021 दे विच। मार्च 2021 दे विच इन्हां नूं दिता जाएगा ये पैरिस दे विच। कित्थे दिता जाएगा? पैरिस दे विच। ठीक है जी। और इस तो इलावा अगर आप इन्हां दी लाइफ हिस्टरी की गल करिए, इन्हां नूं एक अवार्ड होर दिता जा चुका है बीरेन रॉय स्पेस अवार्ड। बीरेन रॉय स्पेस अवार्ड इन्हां नूं दिता गया सी 2011 दे विच। 2011 दे विच बीरेन रॉय स्पेस अवार्ड इन्हां नूं दिता जा चुका है। ठीक है जी। अच्छा, कि यह फर्स्ट इंडियन ने जिहड़े वॉन करमन अवार्ड जिन्होंने वॉन करमन अवार्ड दिता गया? नहीं। इन्हां तो इलावा कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन नूं भी यह अवार्ड दिता जा चुका है और UR राव नूं भी यह अवार्ड दिता जा चुका है। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन और UR राव भी इस अवार्ड नूं जित चुके हैं पहले। ठीक है जी। बेसिकली UR राव आई थिंक 2005 के दिता गया इन्हों नूं और कस्तूरी रंगन जी का मैनूं याद नहीं है। जी सतीश रेड्डी कौन ने? जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन ने। DRDO के चेयरमैन ने इन्हों नूं दिता गया सी मिसाइल सिस्टम अवार्ड अमेरिका द्वारा इन्हों नूं दिता गया सी। सचिन अवस्थी के रिलेटेड एक न्यूज़ डिस्कस कर लें। सचिन अवस्थी नूं भी एक अवार्ड दिता गया ग्लोबल ह्यूमनटेरियन अवार्ड दिता गया सचिन अवस्थी नूं। ग्लोबल ह्यूमनटेरियन अवार्ड 2020 लंडन दे विच इसनूं दिता गया। ग्लोबल ह्यूमनटेरियन अवार्ड 2020 सचिन अवस्थी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद मोहन बगन रतन अ फुटबॉल ग्रुप्स हाईएस्ट ऑनर बेस्ड इन कोलकाता। सब तो पहले मोहन बगन एक क्लब है, एक फुटबॉल क्लब है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा मोहन बगन की जो क्लब है वो किस स्पोर्ट्स के रिलेटेड है? फुटबॉल के नाल। पहला क्वेश्चन। दूसरा, कित्थे लोकेटेड है? कोलकाता दे विच। कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड है मोहन बगन ग्रुप। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि इसका जो हाईएस्ट ओनर है, इसका हाईएस्ट ओनर किसनूं दिता गया? इसका हाईएस्ट ओनर अपना आंसर होएगा फोर्थ ऑप्शन गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी नूं मोहन बगन रतन सब तो ज़्यादा हाईएस्ट ओनर मोहन बगन ग्रुप का फुटबॉल क्लब का इन्हों दिता गया। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पोर्ट्स ना बिलोंग करते हैं और अपना आंसर फुटबॉल नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि गुरबख्श सिंह कौन ने? गुरबख्श सिंह हॉकी तो रिलेटेड ने, ओलंपियन ने, हॉकी तो रिलेटेड ने गुरबख्श सिंह। ठीक है, याद रखना है। और पलाश नंदी क्रिकेटर ने, पलाश नंदी क्रिकेट कोच ने, याद रखना क्रिकेट तो रिलेटेड ने। और अशोक कुमार की गल करते हैं, अशोक कुमार को भी अवार्ड दिता गया मोहन बगन द्वारा ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मोहन बगन द्वारा ही अशोक कुमार को दिता गया। अशोक कुमार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया और यह बिलोंग करते हैं हॉकी तो, यह भी हॉकी तो बिलोंग करते हैं, हॉकी ओलंपियन ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च रोको टोको कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वियर मास्क। एक कैंपेन लॉन्च किया गया रोको टोको, यानी कि जेडे पर्सन ने मास्क नहीं पहना होया उसनू रोको और उसनू टोको कि तू मास्क क्यों नहीं पहनया, और उसनू मास्क प्रोवाइड किया जाएगा। 20 रुपये का मास्क उन्होंने मौके पर प्रोवाइड किया जाएगा। किहड़ी स्टेट द्वारा? मध्य प्रदेश द्वारा। MP द्वारा इस इनिशिएटिव नू शुरू किया गया, इस कैंपेन नू लॉन्च किया गया MP द्वारा। MP के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा
MP की गल करिए डेली कोई ना कोई एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं MP स्टेट गौरमेंट, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के चल रही है, याद रखनिया ने सारी स्कीम्स अपने लिए इंपोर्टेंट बननगियां, ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए आंध्र प्रदेश की, सब तो पहले अच्छा MP की स्कीम्स ही डिस्कस कर लें। दीदी व्हीकल सर्विस MP द्वारा, चरण पादुका कैंपेन, किल कोरोना कैंपेन। इस तो इलावा अगर आप गल करिए हमारा घर हमारा विद्यालय, हमारा घर हमारा विद्यालय। इस तो इलावा अगर आप गल करिए, इस तो इलावा कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस प्रोवाइड किया इन्होंने आंगनवाड़ी दिव्यांग वर्कर्स नूं। FIR आपके द्वार, जीवन शक्ति, जीवन अमृत योजना, ये सारी स्कीम्स लॉन्च की जा रहे हैं MP स्टेट गौरमेंट द्वारा। बाकी स्टेट्स के बारे कुछ न्यूज़ ने आप पहले नहीं डिस्कस की हुई, थोड़े डिस्कस कर लें। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने की कराया रायतू भरोसा केंद्र। आंध्र प्रदेश के विच रायतू भरोसा केंद्र ने, रायतू भरोसा स्कीम दे अंडर इन्हों बनाया गया सी रायतू भरोसा केंद्र। इन्हों द्वारा इन्हों की हैल्प के नाल, रायतू भरोसा केंद्र की हैल्प के नाल एक इनिशिएटिव शुरू किया गया मैपिंग ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की मैपिंग शुरू की गई है। क्रॉप्स की मैपिंग शुरू की गई है, इसका मतलब कि जायजा लिया जाएगा कि किहड़ी पूरी स्टेट दे विच किहड़ी क्रॉप कितनी उगाई गई है, उसके हिसाब के नाल जिहड़ी मंडियां होणगियां उसका रेट जिहड़ा डिसाइड किया जाएगा। किस दे द्वारा लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश द्वारा, ताकि फार्मर्स को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है जी। इस तो इलावा लॉ नेस्टम नाडू नेडू प्रोग्राम, नेतनम नेस्टम स्कीम, रायतू भरोसा स्कीम, ये स्कीम्स कित्थे दियां ने? आंध्र प्रदेश दी। मत्स्य करा भरोसा स्कीम भी आंध्र प्रदेश की है। निर्माण पोर्टल आंध्र प्रदेश का है, याद रखना। इस तो इलावा न्यूज़ डिस्कस कर लें आप केरला की। केरला रिलेटेड एक न्यूज़ डिस्कस कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के एक केस चल रहा सीगा पद्मन स्वामी टैंपल के रिलेटेड। क्वेश्चन डायरैक्ट एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पद्मन स्वामी टैंपल किहड़ी स्टेट दे विच है? किहड़ी स्टेट दे विच है? केरला दे विच। केरला दे विच है पद्मन स्वामी टैंपल। इसकी जी एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली, अगर पुराने टाइम तो गल करिए, अंग्रेज़ों के टाइम तो गल करिए, इत्थे एक रॉयल फैमिली है ट्रैनवे कौर। ट्रैनवे कौर रॉयल फैमिली, राजा महाराजा की जी फैमिलीज़ होंदियां ने, ट्रैनवे कौर रॉयल फैमिली है। इस दे अंडर सी उस टैंपल नूं इन्हां दी फैमिली के हैड द्वारा ही बनाया गया सीगा, इन्हां दी फैमिली च एक परसन द्वारा बनाया गया सी, तां उसकी जी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंडर सी। पर गौरमेंट ने कहा कि जो आज़ादी तो बाद इसकी जी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी जी रेगूलेशन है, सारी चीज़ां इसदियां किसनूं दित्तियां जान? सरकार नूं दित्तियां जान। इस फैमिली ने केस किया और फाइनली इस फैमिली ने इसनूं जित लिया कि हुण इसके जिहड़े राइट्स ने और ट्रैनवे कौर फैमिली के कोल ही रहणगे। और जिहड़ा टैंपल है पद्मन स्वामी टैंपल, ये क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि यह इंडिया का ऐसा टैंपल है जिथे सब तो ज़्यादा गोल्ड चढ़ाया जाता है। अगर आप गोल्ड की गल करिए, यह ऐसा टैंपल है जिथे इंडिया के सब तो ज़्यादा गोल्ड बेसिकली लॉर्ड विष्णु के नाल रिलेटेड है पद्मन स्वामी टैंपल, श्री पद्मन स्वामी टैंपल, और सब तो ज़्यादा गोल्ड इस टैंपल के चढ़ाया जाता है, ठीक है जी, याद रखना। अज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन के आप मैक्सीमम तो मैक्सीमम न्यूज़ डिस्कस कीतियां ने, स्टैटिक फैक्ट डिस्कस किए ने। ओवरऑल सैशन तुहाडे लई एक कंप्लीट पैकेज के रूप में हुंदा है कि तुहाडे एग्जाम के रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसी बच ना जाए जिहड़ी तुहानूं ना आती होवे। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। शेयर जरूर कर दो सैशन अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।